Hello students, how are you all? I hope you all are doing good. Today we are going to explore the soil. Ready, steady, start. Observe pictures 1, 2 and 3. Talk about it. What is a common in them? What is shown in this picture? 1. Hurry up friends, it's about to rain. Get inside the home. We are I am me. I live in burrows in the ground. Have you ever seen me? Hey, do you know me? I am your friend. The dash ये आप खुद से करेंगे. Concepts to know. Formation of soil, composition of soil, presence of water and air in soil, types of soil, soil erosion, soil conservation. Soil is the uppermost layer of the earth. Plants get water and minerals from the soil. All living things depend on the plants for food directly or indirectly. Small plants like earthworms and beetles etc. also live in the soil. Let's learn about how the soil is formed. Okay, देखिए soil क्या होता है बेटा, मिट्टी होता है, मतलब कि अर्थ का जो सरफेस होता है वो सॉइल से ही कवर्ड है. अब सॉइल का यूज़ किया जाता है बहुत सारी चीज़ों के लिए, जैसे कि अब प्लांट्स उगाते हैं सॉइल में. ओके, सॉइल में कुछ इंसेक्ट्स भी होते हैं जो रहते हैं, जैसे कि अर्थवर्म है, बीटल्स है. ओके, तो आइए इसके बारे में और जानते हैं और पढ़ते हैं. ओके, नाउ formation of soil. Many years ago the earth was made up only on rocks. There was no soil. Slowly the huge rocks broke down into small pieces by the action of extreme heat, cold, rain and wind. This continued for thousands of years till the rocks broke down into very small pieces. Finally tiny pieces of rocks formed the soil. Okay, देखिए बहुत सालों पहले क्या हुआ था कि अर्थ जो है हमारा टोटली किस चीज़ से बना हुआ था? रॉक से, बड़े बड़े पत्थरों से बना हुआ था. फिर क्या हुआ, जैसे कि पहले के टाइम पे बिल्कुल भी सॉइल नहीं होता था, लेकिन ह्यूज रॉक्स जो है वो स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो गए. किस तरीके से? जब पानी का बहाव आता है, रिवर्स जो फ्लो करती हैं, उनके फ्लो करने के कारण तेज़ पानी के बहाव से जो आपके ह्यूज पीसेस थे रॉक्स के, वो स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो गए. ओके, इस तरीके से जब स्मॉल पीसेस बने तो उससे क्या बनी? सॉइल बनी. ओके, नाउ द सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग ऑफ रॉक्स. Tiny plants and animals grow in the soil. When these plants and animals die, their remains get mixed with the soil. The dead, rotten remains of the plants and animal in the soil is called humus. Humus makes the soil fertile. Okay, देखिए soil जो बनती है वो rocks की जो वेदरिंग होती है उससे बनती है. ओके, नाउ अब सॉइल में जो स्मॉल प्लांट्स और एनिमल्स जो मर जाते हैं वो मर्ज हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं सॉइल में, और उनके मिक्स होने की वजह से सॉइल में क्या बनती है? ह्यूमस बनती है. और ह्यूमस की वजह से क्या होता है? सॉइल में फर्टिलिटी आती है, उपजाऊपन आता है. ओके, नाउ composition of soil. Soil is made up of gravel, sand, clay and humus. Soil also contains water and air. Let us conduct some simple activities to understand this. देखिए soil जो है वो बनी है sand से, clay से, और soil में water और air दोनों चीज़ें होती हैं. तो चलिए आइए एक activity के थ्रू ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं. Activity 1. Take a handful of soil in a beaker, add a glass of water to it and shake well. Also, allow the mixture to stand for 10 to 12 minutes. You will observe that different components of soil settle one above the other in the jar. ये आप खुद से करेंगे. The layer at the bottom consists of very tiny stones called gravel. A layer of sand is seen above the stone. Clay settles above the sand. The water at the top is not very clear because it is mixed with humus. Okay, देखिए जो सॉइल की लेयर्स होती हैं कई सारी होती है, तो जब सबसे बॉटम पे जो लेयर होती है उसे ग्रेवल बोला जाता है, और उस लेयर पे सिर्फ और सिर्फ रॉक्स होते हैं. ओके, उसके ऊपर होता है सॉइल. ओके, अब सॉइल के ठीक ऊपर होता है क्ले. क्ले के ऊपर जो लेयर होती है उसमें सॉइल में वाटर मिक्स्ड होता है और वो क्या बनाता है? ह्यूमस. उसे ह्यूमस बोला जाता है. ओके, नाउ information literacy. It takes more than 1000 years to form 1 inch of soil. 1 inch soil form होने के लिए 1000 साल तक लगते हैं. Okay, now presence of water and air in soil. Soil contains moisture. Activity 2. Put some soil in a container and cover it with a lid.
Heat the container with the help of an adult. What do you see inside the lift after heating the soil? You will see some droplets of water on the lower surface of the lid. ये आप खुद से करेंगे. Okay. Now, when the soil is heated, the water present in the soil gets evaporated from vapor. After cooling down, this vapor forms droplets of water on the lid. The water trapped in the soil is called मॉइस्चर. ओके, देखिए जब सॉइल को पानी में आप हीट करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि जो आपकी सॉइल है वो इवेपोरेट होती है किसके फॉर्म में? वेपर के फॉर्म में. ओके, नाउ जब उसे ठंडा किया जाता है, जो लिड है उसके ऊपर क्या फॉर्म हो जाते हैं? छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो जाते हैं. ओके, तो जो वाटर ट्रैप्ड होता है सॉइल में उसे क्या कहा जाता है? मॉइस्चर. हमने क्या पढ़ा था? ह्यूमस पढ़ा था ना. तो जो वाटर आपके सॉइल में ट्रैप हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? मॉइस्चर कहते हैं. ओके, नाउ एक्टिविटी 3, ऑब्जेक्टिव. टू ऑब्जर्व द प्रेजेंस ऑफ एयर इन द सॉइल, व्हाट टू डू? Pour some water over the soil kept in the jar. You will see some air bubble. This air escapes in the form of bubbles when water is poured on it. ये आप खुद से करेंगे. Now types of soil. There are 3 basic types of soil: clay, sandy and loamy. देखिए जो 3 basic types होते हैं soil के वो है clay, sandy और loamy. Okay, clay soil. The soil particles are very tiny. They stick together and have very little space between them. Water cannot flow through it as it is very sticky. It is thus used for making pots, toys, ceramics, etc. Most plants do not grow well in clay soil. Rice grows well in the soil because it needs a lot of water. Okay, देखिए clay soil जो होती है इसमें बहुत tiny particles पाए जाते हैं soil के. Okay, ये काफ़ी ज़्यादा sticky होती है, इसमें space कम होता है. Okay, now इस क्ले का यूज़ किया जाता है टॉय, सेरेमिक्स और पॉट्स बनाने के लिए. ओके, नाउ यहाँ पर ज़्यादा जो प्लांट्स है वो ग्रो नहीं करते. यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है राइस ग्रो करता है क्योंकि इसमें बहुत सारा पानी लगता है. ओके, नाउ सैंडी सॉइल. द सॉइल फाउंड ऑन बीचेस एंड इन डेजर्ट इज सैंडी सॉइल. देयर सॉइल पार्टिकल्स आर लार्ज एंड कैन बी सीन ईजिली. देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स, hence the soil cannot hold water. Most plants do not grow well in sandy soil. Coconut and cucumber grow well in this soil as they do not need much water. Okay, देखिए ये जो सॉइल है ये बीचेस पर ज़्यादा देखी जा सकती है या फिर डेजर्ट एरियाज में ज़्यादा देखी जा सकती है. इस सॉइल में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, इसमें ज़्यादातर वाटर जो है वो होल्ड ऑन नहीं कर पाता है, तो यहाँ पर ज़्यादातर प्लांट्स जो है वो ग्रो नहीं कर पाते हैं सैंडी सॉइल में. यहाँ पे कोकोनट और कुकुम्बर जो है वो ग्रो कर पाता है क्योंकि उसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है. ओके, लोमी सॉइल. लोमी सॉइल इज a mixture of sand, silt, clay and humus. The soil contains humus, air and water. It stays wet but not sticky. It is the best soil for growing plants. ओके, देखिए लोमी सॉइल जो है ये मिक्सचर है सैंड, सिल्ट, क्ले और ह्यूमस का. ओके, और इसमें ह्यूमस है, एयर है, वाटर है और ये सबसे ज़्यादा जो है ग्रो किया जाता है. इसमें प्लांट सबसे ज़्यादा ग्रो होती है प्लांट्स की. ओके, नाउ इंफॉर्मेशन लिटरेसी. सॉइल कैन बी मेड फर्टाइल बाय एडिंग मेन्योर टू इट. अगर कोई सॉइल फर्टाइल नहीं है तो उसमें हम मेन्योर ऐड करके, जिसे हम खाद बोलते हैं, ऐड करके उसे फर्टाइल बना सकते हैं. ओके, नाउ यूजेस ऑफ सॉइल. Plants need soil to grow. They get nutrients and water from the soil. All living things depend on plants for several things other than food. Okay, देखिए plants को soil की ज़रूरत होती है grow करने के लिए. Okay, जितने भी nutrients है और water है plant को किससे मिलते हैं? Soil से ही मिलते हैं. Now, many animals and insects like earthworms, beetle, ants, snails live in the soil. Potters use soil to make pots. Soil is used as a foundation of homes, building roads, etc. We get useful minerals like diamond, marble, granite from the soil. Okay, देखिए एनिमल्स भी, जो कुछ इंसेक्ट है जैसे कि अर्थवॉर्म है, ओके, बीटल्स है, ये सब किस में रहते हैं? सॉइल में रहते हैं. पॉटर्स सॉइल का यूज़ करते हैं पॉट्स बनाने के लिए. सॉइल को यूज़ किया जाता है फाउंडेशंस बनाने के लिए जैसे कि होम्स हो गया, बिल्डिंग्स हो गया. ओके, उसके अलावा कई सारे मिनरल्स जैसे कि डायमंड है, मार्बल है, ग्रेनाइट है, ये हमें कहाँ से मिलते हैं? सॉइल से मिलते हैं. ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं. सॉइल इरोजन. The removal of
topsoil by different factors is known as soil erosion. Due to soil erosion, the soil becomes less fertile. Various agents like wind and water and activities like deforestation, overgrazing by cattle, etc. cause soil erosion. देखिए जो टॉप सॉइल होता है, आपकी सॉइल का लेयर का जो टॉप सॉइल होता है, जब वो रिमूव हो जाता है तो उसका मतलब होता है सॉइल इरोजन होना. ओके, तो सॉइल इरोजन की वजह से सॉइल जो है वो लेस फर्टाइल बन जाती है, उसकी फर्टिलिटी चली जाती है, जिसकी वजह से जो प्लांट्स है वो ग्रो नहीं कर पाते हैं. ओके, तो डिफॉरेस्टेशन, इसके रीजंस और भी हो सकते हैं, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन है, पेड़ों को कट करना, ओवरग्रेजिंग, जैसे कि आप जो हर्डर्स होते हैं वो अपने एनिमल्स को ले आए, ठीक है, जैसे शीप्स को ले आए ग्रेज कराने के लिए, तो ओवरग्रेजिंग की वजह से भी सॉइल इरोजन हो सकता है. ओके, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट सम ऑफ देम. अब कुछ उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं. विंड. When strong winds blow, the topsoil along the organic matter is carried away by the wind. This happens more often when the land is not covered with grass or plants. देखिए, जब तेज विंड आती है, जो टॉप सॉइल होता है वो विंड की वजह से उड़ जाता है, फ्लो कर जाता है. ओके, ये मोस्टली तब होता है जैसे कि सॉइल पे ग्रास जो है वो ग्रो नहीं हुई हो, उस टाइप में. ओके, नाउ water. When it rains heavily, the soil gets washed away by the force of water. Soil erosion by water leads to a loss of agriculture potential. देखिए, जब ज़्यादा तेज़ बारिश होती है तो पानी के फ्लो की वजह से जो टॉप लेयर होती है सॉइल की वो फ्लो कर जाती है, और इसकी वजह से क्या होता है, जो वाटर है सॉइल की वजह से, उस वाटर की वजह से सॉइल इरोजन हो जाती है. ओके, नाउ और काफ़ी सारी एग्रीकल्चर जो होती है वो भी ख़राब हो जाती है, जैसे क्रॉप्स है वो ख़राब हो जाती है हैवी रेनफॉल की वजह से. ओके, नाउ डिफॉरेस्टेशन. कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन. द रूट्स ऑफ ट्रीज होल्ड द सॉइल टुगेदर, thus preventing the soil from getting uprooted. When large areas of the forest are cleared, the topsoil gets eroded by wind एंड फ्लोइंग वाटर. देखिए, जब बहुत सारे ट्रीज को बहुत अमाउंट में कट किया जाता है तो उसे हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं, और ट्रीज को कट करने की वजह से जो टॉप सॉइल होती है वो विंड की वजह से उड़ जाती है या फिर हैवी रेन की वजह से फ्लो कर जाती है, जिसकी वजह से जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है. ओके, तो डिफॉरेस्टेशन भी एक रीज़न है सॉइल इरोजन का. नाउ सॉइल कंजर्वेशन. Prevention of soil erosion is also called conservation of soil. The soil erosion can be prevented by the following ways. देखिए, soil erosion को ना होने देना मतलब के soil को कंजर्व करना, बचाना. अब इसके क्या क्या वेज हैं वो देखते हैं हम. Afforestation. Planting new trees and plants is called afforestation. Whenever trees are cut down, new trees should be planted. Planting trees in hilly areas are most affected for conservation. Okay, देखिए, न्यू ट्रीज को प्लांट करना मतलब कि न्यू ट्रीज और प्लांट्स को उगाना मतलब कि एफोरेस्टेशन होता है. ओके, अब एफोरेस्टेशन जब आप करेंगे तो आप अपने सॉइल जो इरोजन है उसे रोक रहे हैं, कहीं ना कहीं सॉइल को कंजर्व कर रहे हैं. हिली एरियाज में ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ओके, नाउ टेरेस फार्मिंग. In hilly areas, farming is done by cutting steps on the slopes of the hills. This slows down the flow of water and soil removed from one step is deposited on the next step. Thus, the soil is never completely lost. This is terrace farming. Okay, terrace farming साइड में आपको एक पिक्चर दिख रही है यहाँ पे. इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप क्या करते हैं, ये हिली एरियाज में किया जाता है कि क्रॉप स्टेप बाय स्टेप्स उगाए जाते हैं. तो जब भी कोई वाटर फ्लो जब होता है तो जो सॉइल फ्लो हो रही है यहाँ पे वो एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे आते हैं. इस तरीके से सॉइल इरोजन नहीं हो सकता है. इसे क्या कहते हैं हम, इसे हम टेरेस फार्मिंग कहते हैं. ओके, नाउ बिल्डिंग डैम्स. Dams are built to prevent floods. Floods not only damage the crops but also wash away the topsoil. देखिए, डैम्स जो है वो फ्लड्स को रोकने के लिए बिल्डअप किए जाते हैं. तो जब फ्लड्स को रोका जा सके, पानी के बहाव को रोका जा सके, इसकी वजह से क्या होगा, जो टॉप सॉइल है वो बहकर आगे नहीं जाएगा. ओके, नाउ रीड एट अ ग्लैंस. Soil is formed by the breaking of rocks, by the action of temperature, air, wind and water, etc. Soil contains gravel, sand, clay and humus. Soil also contains water and air. There are three types of soil: clay, sandy, loamy soil. The removal of topsoil by different factors is known as soil erosion. Prevention of soil erosion is also called conservation of soil. Key terms to know.
weathering, breaking down the rocks into smaller pieces by heat, wind and water. Gravel, some stones present in the soil, topmost layer of the earth. Moisture, water trapped in soil of air. Humus, remains of dead plants and animals in soil. So students, I hope आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा. अब इसके एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे.